اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ آج میں نے اعوذ باللہ سے اس لیے بات شروع کی کہ صبح صبح ہی آج میں نے شیطان الشیاطین کا چہرہ دیکھا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسے لوگ اور ایسے شخص شیطان کو آشیرواد دے کر بھیجتے ہیں لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے۔ جی ہاں، میں اسی شخص کی بات کرتا ہوں جس کو ابھی آپ دیکھیں گے، جس نے پوری انسانیت کو، پوری امت مسلمہ کو، ہر طبقے کو، ہر انسان کو کفر کی زنجیر میں جکڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک نظریاتی اختلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر امت مسلمہ میں بھی طبقات کے اندر نظریاتی اختلاف ہیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہیں یا ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں۔ اختلاف کس حد تک جائز ہے اور کب وہ ناجائز ہو جاتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ میں نے اس شخص کی ویڈیو آج پہلی بار نہیں دیکھی یا سنی ہے، میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، لیکن مجھے کچھ ساتھیوں نے اس بات پر آگاہی کی اور بڑا مجبور کیا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور ضروری بھی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے علاوہ وہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہی۔ آپ سے شروع ہوئی اس نظریے کے سب سے بڑے فائننسر جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں، اسی کے اثر سے کویت ہے، دبئی ہے، ابوظہبی ہیں۔ یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہے، اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 لگا تو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہے، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بچار دھارا کے ہیں۔ ان سب کا فائننسر سعودی عرب ہے۔ اور سنیے آپ، یہ وہابیوں کو ہلکے میں مت لیجیے گا، انہوں نے مسلمانوں کے تمام ضروریات کو دھیان میں رکھ کر کے سنگٹھن بنایا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچوں میں، سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے، ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا، ندوہ بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے، ان کے لیے تبلیغی جماعت بنایا۔ انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے، ایکیڈمک مزاج رکھتے ہیں، ان کے لیے جماعت اسلامی بنایا۔ کون شرپسند ہے، فسادی ہے، ان کے لیے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے، حزب المجاہدین بنا دیا ہے، لشکر طیبہ بنا دیا ہے۔ جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی ایک آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں، ندوۃ العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو، جو شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا الکفر و ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں
कि जड़ काटने से फितना खत्म होगा, पत्तियां काटने से नहीं। तबलीगियों को गिरफ्तार करने से बेहतर है इस तबलीगी जमात की जड़ तक पहुंचिए और वहां जाकर के उस जड़ का खात्मा करें, ताकि ना कोई जहरीली पत्तियां पैदा हो, ना कोई जहरीला फल बरामद हो। नहीं है। और समझेंगे भी कैसे कि ये लोग मुंसलिक हैं उन लोगों के साथ, उन दल्लालों के साथ जो आज जबान खोलते हैं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हैं, जो आज जबान खोलते हैं तो कुरान पर बकवास करते हैं, जो आज जबान खोलते हैं तो इस्लाम के दुश्मन नजर आते हैं, जो आज जबान खोलते हैं तो अहले बैत के दुश्मन नजर आते हैं। ये उन्हीं लोगों के तलवे चाटने वाले हैं और उन्हीं लोगों के दरवाजे पे कुत्ते की हैसियत से रहते हैं। उन्हीं के दरवाजों से इनको खैरात मिलती है। इसीलिए आपने इस शख्स को देखा होगा कि मीडिया वाले के सामने भीख की तरह ये मांग रहा था कि वहाबियों को जड़ से उखाड़ दो, तबलीगियों को जड़ से उखाड़ दो, नदवियों को जड़ से उखाड़ दो, जमात इस्लामियों को जड़ से उखाड़ दो। और वहाबी वायरस से इफेक्टेड जो कंट्रियां हैं, वो कंट्रियां कौन है? आपने देखा होगा, इसमें अरब है, कुवैत है, अम्मान है, इमारात है, इन सब को इसने काफिर बना दिया। और वहाबी वायरस से इफेक्टेड कंट्रियां, ये लफ्ज इस शख्स ने कहे। क्यों जाते हो तुम मदीना रोज़ा अतहर के पास? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस रोज़ा अतहर के साथ? क्या रिश्ता है तुम्हारा काबतुल्लाह के साथ, जिस काबतुल्लाह की आजमत मुसल्लम है और मुसलमान के दिल के अंदर पायवस्त है? लेकिन इनको क्या बताएं, ये हर वक्त दुरंगी रहे हैं। दुरंगी क्या, ये सतरंगी रोल निभाते हैं। और इन्होंने, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे और हमारा ईमान दो रंगी नहीं है। दारुल देवबंद का ईमान दो रंगी नहीं है, नदवा वालों का ईमान सतरंगी नहीं है, जमात इस्लामियों का ईमान सतरंगी नहीं है, तबलीगियों का ईमान सतरंगी नहीं है। सतरंगी तुम उस दौर में भी थे जब हिंदुस्तान को आजाद किया जा रहा था, दो रंगी तुम उस दौर में भी थे और दो रंगी तुम इस दौर में भी हो। तुमने उस वक्त भी यहूदियों के तलवे चाटे, तुम आज भी चाट रहे हो। तुमने उस वक्त भी इस्लाम के मुखालिफिन के दर पे जाके भीख मांगी है और तुम आज भी वो काम कर रहे हो। इस शख्स ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुफ्र के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दारुल देवबंद हो, नदवतुल उलमा हो, तबलीगी हो या इसके अलावा कोई भी हो, वो इसलिए नहीं लड़खड़ाते, वो ईमान वाले हैं, उनको अल्लाह पर ईमान है, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। और इस जहर आलूदगी की वजह आपको एक और मैं बता दूं कि लॉकडाउन के अंदर चूमा चाटी बंद हो गई है, पैसे आना बंद हो गए हैं, नजरों नियाज आना बंद हो गए। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हैं इस वजह से कि इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे आका, हमारे मौला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इस हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे वह आबा अजदाद हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान की सरजमीन की खातिर खून बहाया है। इस हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारे बाबा आदम की मीरास। लेकिन तुम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत करते हो कि तुमने औलिया अल्लाह के मुकद्दस मज़ारों की चादरों को बेचकर खाया है। तुम उनकी नजरों नियाज पर पलते हो, वो नजरों नियाज आज बंद हो चुकी है। इस वजह से तेरा ये मुंह और तेरी ये बकवास आज ऐसी है। तबलीगी जमात चली जाएगी, वहाबीज़म चला जाएगा, या दूसरे तबके के लोग जिसका इन्होंने तज़किरा किया, तो इनकी दुकानें खुली की खुली रह जाएंगी। इनके लिए माल जो है सप्लाई कुल्ले तौर होता रहेगा, इनकी कोई रुकावट नहीं है। इनकी जो तिजारती रुकावट जो इन्होंने औलिया अल्लाह के मज़ार को तिजारत बनाया हुआ है, उसमें रुकावट इनको देवबंदी नजर आता है, नदवी नजर आता है, जमात इस्लामी नजर आता है, बाकी कोई वजह नहीं है।
अफसोस, याद आता है मुझे कि मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। ऐसे लोग शैतानत की जिनके अंदर सोच हो, फिक्र हो, बुढ़ापे के अंदर इंसान की और उस शख्स की जिसके अंदर आलिमाना शान हो, वो तो इस उम्र में आकर उसकी सोच की बुलूगत की इंतहा नहीं होती है, लेकिन इनके फिक्र तदब्बुर जो शैतानी है उसकी कोई इंतहा नहीं। और किस तरह ये भीख मांग रहा है मीडिया वाले के सामने कि इनका कला कमा किया जाए, इनको जड़ से उखाड़ दिया जाए, कि कोई जहरीली पत्ती जो है, और उसके अलावा नफरत फैलाने की खातिर इसने जो है सब टाइटल इनके साथ लगा दिए कि यही जिहादी हैं, यही दहशतगर्द हैं, यही आतंकवाद हैं। जो एक गैर शख्स मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, वही अल्फाज इस शख्स ने भी अदा किए। आज मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे साथ इख्तलाफ होगा, लेकिन हम भी कभी इख्तलाफ नहीं चाहते थे और आज तक नहीं किया है, हमेशा इत्तिहाद की कोशिश की है। और ये वो शख्स है कि आपको सबूत के साथ इस वीडियो में ही मिलेगा कि ये जब हज के लिए गया, इसने नमाज काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी में नहीं पढ़ी। ये जो तुम कहते 50,000 का सवाब है, 50,000 का सवाब, अबे इमाम नहीं देखेगा। तो इमाम अगर मस्जिद नबवी में गलत हो तो जमात छोड़ना सुन्नते सहाबा है। ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है जो सुन्नते सहाबा पे अमल कर रहे हैं। मस्जिद नबवी के इमाम को गलत कहा, काबतुल्लाह के इमाम को गलत कहा कि इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती, इनके पीछे नमाजें खराब क्यों की जाए। जिसका ये अकीदा हो, जिसका ये जहन हो, वो कौम का मुक्तदा कैसे बन सकता है, रहनुमा कैसे बन सकता है। ऐसे शख्सों को तो 24 घंटे शैतान का आशीर्वाद रहता है। जिस तरह इनकी हरकतें, जिस तरह इनकी सोच है, अफसोस का मकाम है। मुझे अफसोस इस बात पर होता है, ये कहते हैं ना कि हम मोहब्बत रसूल में गर्क हैं और दूसरे शख्स को ये वहाबीइज्म की आड़ में, दूसरे मजहबी अकायद की आड़ में दूसरे को गुस्ताख रसूल घोषित कर देते। सबसे बड़े गुस्ताख तुम हो। मुझे बताओ जरा, इस हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को निशाना बनाते हैं, अहले बैत को भी निशाना बनाते हैं, और तुझ ही जैसे बेशरम लोग हैं कि जिन्होंने तबलीग वालों की मुखालफत की और तबलीग वालों के हक में भीख मांगी, तुझ जैसे लोगों ने, कि उनका कला कमा किया जाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए, उनको सजा दे दी जाए। लेकिन तेरे ही मानने वाले, तेरे ही तबका फिक्र के लोग, मैं सलाम करता हूं उनको, जिन्होंने यह भी कहा कि हमें इख्तलाफ है तबलीगी जमात से, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनकी हिमायत करते हैं अज़रुए इस्लाम और अज़रुए ईमान। लेकिन इस जैसे चमगादड़ लोग, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, कोई इस्लाम को कैसे मिटा सकता है। हक कहने वाले को, हक पर अमल करने वाले को, हक पर रहने वाले को न आज तक कोई मिटा सका है, न कोई मिटा सकेगा। तू चाहे जितने तलवे चाट ले जाके, किसी के जितनी मिन्नतें करनी है कर ले। तुम लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें बंद होने का खदशा है, इस वजह से तुम लोग तबलीग के मुखालिफ नजर आते हो, नदवा के मुखालिफ नजर आते हो, देवबंद के मुखालिफ नजर आते हो। उस देवबंद के मुखालिफ, उस नदवा के मुखालिफ, उस जमात के मुखालिफ जो हकीकी तौर पर दीन का काम करते हैं। आज ये अल्फाज कहने पर, यह तकब्बुरन नहीं कहता हूं, यह कहने पर मैं मजबूर हूं कि फर्क ही नहीं रहा।
اور یہ ٹیگ تو نے ان لوگوں پر لگا دیا، جماعت اسلامی پر لگایا، ندوہ والوں پر لگایا، دیوبندیوں پر لگایا، تبلیغیوں پر لگایا کہ یہ الکفر ملت واحدہ ہے۔ تو اپنی شکل دیکھ لے، اپنی اوقات دیکھ لے، اور اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے کردار کو دیکھ لے، اپنے نظریے کو دیکھ لے، اپنے عقیدے کو دیکھ لے کہ الکفر ملت واحدہ کی تشبیہ تو ہے یا یہ اور لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کو اس وبا سے آزاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سایہ نصیب فرمائے جس سائے کے ہم سب حقدار ہیں۔